Good morning, everyone. Morning, everyone. चलिए, let us continue Venn diagram again. Yes. First, let me revise a little bit. Then we'll continue. All X are Y's. Yes. Example. All scientists are scholars. All residents of Mia Road are also residents of Thane. Yes or no? All X are Y's. Agree? नेक्स्ट नो एक्स आर वाइज इसका हमने लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. नो एक्स आर वाइज कुछ भी कॉमन नहीं है. ऑड नंबर इवन नंबर कॉन्सोनेंट वॉवल्स नथिंग इज कॉमन. डिसजॉइंट सेट्स नथिंग इज कॉमन. इंटरसेक्शन is a null set. Yes, no wicket keeper is a bowler in a cricket team. Some x r y's depend upon questions. Some quadratic equation have real roots. Some quadratic equation have no real roots. तो उसमें फर्स्ट डायग्राम आएगा अंदर सर्कल सम एक्स आर वाइज एंड नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट माइंडेड तो इसमें सेकंड वाला डायग्राम आएगा डिपेंड अपॉन क्वेश्चन. ऑल एक्स आर एक्स इफ एंड ओनली इफ क्वेश्चन में आया तो वी ऑलवेज ड्रॉ ऑल एक्स आर एक्स. ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर vice versa. All equiangulars are equilateral. दोनों बात सही है. Yes. 3 questions we have done already. Question number 4. Some hardworking students are obedient. ये इंसानों के बारे में बात हो रही है. Some hardworking students are obedient. So, but obvious, universal set will be a set of all people, not students. Whenever we're talking about human beings, students, teachers, professors, scientists, whatever, universal set will be set of all people. Understood? H set of all hardworking students. O set of all obedient students. Agree? And a diagram.
all. Write the question also, please. In this, write the question also, please. Some hardworking students are obedient. क्वेश्चन पे लिखना. Fourth one finish. Like this. Universal set. Hardworking, obedient. This must be written. This part must be written. Finish, everyone. Any doubts, anyone? One 1.10. I am doing all the question at the same time, but in an order. First three questions, maybe questions numbers maybe not be same, but all 10 or 9 questions will be covered. Okay. Last first three questions we have done. No exercise. Now we are solving some exercise. Okay. Chalo, solve karo. Next one, number 5th. Some share brokers are chartered accountant. Same as above. What is U? Same diagram. U is set of all people. S, set of all share brokers. C, set of all chartered accountants. Draw diagram. Same. Universal set. S, C. This is a common part. Shaded part. You can shade also. Huh?
Understood? Question number 5. Question number 5, any problem? Same as 4. Same question if I said many share brokers are not CA. Same question. तो कौन सा पार्ट शेड होगा? ये वाला, है ना? एग्री और नॉट? मैनी सीए विच आर नॉट शेयर ब्रोकर, तो कौन सा पार्ट होगा? ये वाला, जो प्योर सीए और ये क्या है? दोनों है. एग्री और नॉट? ये क्या होना है? ओनली शेयर ब्रोकर्स, और ये ओनली सीए. मिडिल पार्ट बोथ. शेयर ब्रोकर है, सीए नहीं है, तो ये वाला पार्ट. सीए है, शेयर ब्रोकर नहीं है, तो ये वाला पार्ट. दोनों है, तो ये वाला पार्ट. अंडरस्टूड? यस. Some NRI, non-resident Indians, are not rich. Same जो मैंने कहा ना ऊपर, वही वाला. NRI are not rich. Again, you again, human being, set of all people, and set of all NRI, are set of all rich people. Diagram, same diagram. Shading part will be different. Shading part, this is universal set. Set of NRI, set of rich NRI. ये वाला NRI तो है बट रिच नहीं है. Understood? They are not rich NRI. Any doubts? Question number 6. Yes. Any doubts, anyone? Next question is, if a quadrilateral is a rhombus, then it is a
पैरेललोग्राम। सो इसमें आपको ऑर्डर मालूम होना जरूरी है जो मैंने आपको दिया है। फर्स्ट इज अ ट्रेपीजियम, 9th स्टैंडर्ड में था, चैप्टर नंबर 4 आई थिंक सो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल्स। यस, सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था ट्रेपीजियम, वन साइड पैरेलल, वन साइड नॉट पैरेलल। उसके बाद स्टार्ट हुआ पैरेललोग्राम, ये। उसके बाद पढ़ा गया रोम्बस, फिर रेक्टेंगल, और लास्ट में स्क्वायर पढ़ा गया। दिस 4 सीक्वेंस, एग्री और नॉट? फर्स्ट पैरेललोग्राम, then rhombus. All rhombus are parallelogram. All rhombus are parallelogram, but all parallelogram did not be rhombus. जैसे ही मीरा रोड थाने है, थाने मीरा रोड नहीं है, तो थाने कौन हो गया इसमें? इसमें थाने कौन हो गया? पैरेललोग्राम। यस और नो? और मीरा रोड कौन हो गया? rhombus is a मीरा रोड। तो मीरा रोड के अंदर समाया हुआ है, किसके अंदर? थाने के अंदर। यस, रोम्बस के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल। ऑल रेक्टेंगल आर रोम्बस, और रोम्बस नीड नॉट बी रेक्टेंगल। उसके बाद स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल नीड नॉट बी स्क्वायर। तो पहले क्या आता है? सबसे अंदर जो आता है ना, सबसे अंदर स्क्वायर होता है, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद रोम्बस, उसके बाद पैरेललोग्राम। यस और नो? भूलना मत। अगर if you know this, this question is very simple. If a quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. But obviously regarding geometry, use what? Set of all parallelogram. Agree? P, set of all parallelograms. R, set of all rectangle. I'll draw a diagram for you. Diagram. First you draw, then a larger circle, and one more smaller circle inside this. Naming universal set, set of all parallelograms, set of all rhombus. Shading inside वाले को। Understood? Any doubts? Number 7, any doubts, any one of you? Finish everyone? Question number 7.
Any doubts? Question number 7, any one of you? Next is question number 8. If n is prime, if n is prime and n not equal to 2, then n is odd. To do this, first we have to know what is prime number. That I'll write here for you. क्या होता है प्राइम नंबर? Prime number, a number which is divisible by itself, n1 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 17 19 23 29 31 37. These are prime number. 2 is the only prime number which is even. Remaining all prime numbers are odd. Agree? Now as you can see that a prime number can be odd as well as even, not possible. या तो वो even होगा या तो वो odd होगा. जैसे ऊपर, a person can be a share broker or CA and both at the same time. Human beings possible, but here if number is prime, या तो वो even होगा या तो वो odd होगा. मतलब ये वाला तो नहीं चलेगा. Agree ना? Yes or no? Which part you are supposed to shade? If n is a prime, n is a prime, yes, and n is not equal to 2, then n is what? Odd. Yes or no? If n is a prime number and n not equal to 2, then n is what? Odd. So draw a circle first. So we are supposed to draw this. As you can see, odd numbers है, मगर सारे odd नहीं है. 9 नहीं आया है, 15 भी नहीं आया है, 21 भी नहीं आया है, 25 भी नहीं आया है, 33 भी नहीं आया है. Agree or not? 39 भी नहीं आएगा because 13 3 are 39. 39 is not a prime number. So what is U? Set of all numbers. Agree? ये हो गया आपका set of all numbers. Then P set of all odd numbers. Sorry, P set of all prime numbers. O set of all odd number बड़ा है prime number से. Odd number में सब आ गए. Odd numbers के लिए prime जरूरी नहीं है. A number which are not divisible by 2 are prime. Odd number, sorry. So odd number is bigger set. Odd numbers. Set of all odd numbers और उसके अंदर prime number. Yes. Naming universal set. Odd numbers. Prime number. If n is a prime number and not equal to 2, then it is odd. Understood?
shading part. Prime number is a proper subset of odd numbers. Any doubts? Question number 8. Finish question number 8. Next is question number 9. All teachers are scholars. Scholars are teacher. Last वाला all X are X. एक ही सर्कल आएगा. Yes. Last diagram. This one. Only one circle. All X are X. Set of all people, set of all teachers, set of all scholars. All teachers are scholars, all scholars are teachers. Last diagram. All equilateral triangles are equiangular. Similarly, all equiangles are equilateral. All X are X. Finish everyone? Last type. इस चैप्टर की सबसे डिफिकल्ट टाइप है ये. That is called pure algebra. That you haven't done in your whole life. Pure algebra, pure. आपको पढ़ाया गया. That you know already, I think so. ये. You have done this. 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. 2 into 3 is equal to 3 into 2. आपको ये मालूम है. बट इसको एल्जेब्रा में क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर नॉट कम्यूटेटिव. एग्री? यस और नो? 2 plus 3 plus 4 वो सब प्रॉपर्टी एसोसिएटिव
commutative, distributive, that in logic that we have to done. लिखा है without using truth table. That means TFF वाला नहीं है, वो easy था. That I have done in the beginning. Type number 2 में क्या था ना, prepare the truth table of given statement pattern, then tautology, लास्ट में सब टी आया तो, देन कॉन्ट्राडिक्शन, लास्ट में सब आया तो, देन कॉन्टिजेंसी, देन वी प्रूव अ पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, कॉलम नंबर दिया था, सर्कल किया था, दैट वी हैव डन. मगर वो यहाँ नहीं चलेगा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल और यूजिंग द एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स. एल्जेब्रा बड़ा ही जबरा होता है, जबरा होता है एल्जेब्रा. यू मे थॉट इट इजी बट हाई लेवल पे बहुत डिफिकल्ट है ये. ऑफ अ स्टेटमेंट प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट. अच्छों को ये टाइप नहीं आता है. इट्स रिक्वायर्ड lots of practice from your side. I'm telling you first only, it's required practice and the basic concept should be crystal clear, then only you understand what I'm trying to say you. Try this, all of you. Algebra of statements. I can prove each and every one by truth table. But किसको क्या बोलते हो देख लो. अभी क्या है इधर, P और P इक्विवेलेंट टू P. यस, ये फॉर्मेट है इसका. एंड Q and Q, P and और में भी और एंड में भी. That I can prove by truth table if you have a doubt. If P is a one statement, P statement है तो इसके आउटकम क्या आएंगे P के, TF. फिर से P है तो क्या आएंगे, TF आएंगे ना. अब क्या चाहिए, और P और P, और में क्या होता है, 2F FT सेम है. एंड एन में क्या होता है, P एंड P में 2T T, बाकी F सेम है. ट्रुथ टेबल वाइज एवरीथिंग विल बी इक्वल. उसको बोलते क्या ये आपको मालूम चाहिए. आइडेंटिपोटेंट लॉ. ना इन द क्वेश्चन P इज गिवन बट क्वेश्चन में P आई जरूरी नहीं है. अगर ऐसा आया P implies Q और P implies Q तो उसका आंसर भी P implies Q होगा. सेम सेम वैल्यू और के साथ सेम, सेम वैल्यू और के साथ सेम. ऐसा आया P डबल implies Q एंड P डबल implies Q तो उसका आंसर भी क्या आएगा बच्चा, P डबल implies Q. तो P की प्लेस पे दोनों वैल्यू अगर सेम सेम आ रही है और एंड तो वो सेम ही होगा. अंडरस्टूड. जैसे वी राइट क्वाड्रेटिक एज अ व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. एग्री और नॉट लिखते इन जनरल फॉर्म में, बट देयर आर मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी राइट. इसका फॉर्म है और के साथ दो वैल्यू सेम आई तो उसका आंसर सेम होगा. एंड के साथ दो वैल्यू सेम आई तो उसका आंसर सेम होगा. अंडरस्टूड. राइट फर्स्ट वन, आइडेंटिपोटेंट लॉ. आई जस्टिफाई. ये मैंने स्टार्टिंग में ही ट्रूथ टेबल में जस्टिफाई कर दिया था. मैंने दोनों ड्रॉ किया था अगर आपको याद होगा तो. मैंने P Q और Q भी ड्रॉ किया था और Q और P भी ड्रॉ किया था. सेम मैंने P Q P and Q and Q and P ड्रॉ किया था. दैट इज कम्यूटेटिव लॉ. we can interchange. We can write 2 plus 3, we can write 3 plus 2. Yes, we can write 2 into 3, we can write 3 into 2. But matrix multiplications are not commutative. Yes. Right, second one. Idempotent law.
Then associative law, when the bracket is not given and the sign should be same. देख लो इसमें, जैसे 2 + 3 + 5, addition, it should be same operation. Then we can introduce bracket according to our variant. करो, is it now audible? Yes or no? Associative law. You done? Third one. Any doubts in third one? Condition, sign should be same. These are all keys. बाद में लॉक्स आएंगे, लॉक एंड की खेलना है हमें बाद में, कौन सी चाबी कौन से ताले फिट होती है, दैट आई टीच यू, बट पहले की स्टडी कर लो. इफ यू डोंट हैव अ की, हाउ कैन यू ओपन द लॉक? दीज आर ऑल कीज and I'll give you a trick that you have to follow to prove this. Distributive law, nothing but bracket is opening. When you open the bracket, पहले क्या आएगा? P और Q, sign and P और I, reverse, इसका dual है ये, है ना? What is the meaning of dual? Or become and become or, उसका dual है. Open क्या? Now let me clear you. Left to right and right to left भी हो सकता है, possibility है. Yes. और P कॉमन, क्या बचा? Q and R. And P कॉमन, कॉमन में क्या बचा? Q और R. That is also we can do. Distributive law. Distributive law also can be done. Any doubts? Question number 4. Fourth property, distributive law. De Morgan's law तो हमने पहले ही किया है. Negation of conjunction, negation of disjunction ये वो. Open the bracket. De Morgan's law.
De Morgan's law we have done before only. Finish everyone? Finish? कंडीशनल लॉ किया था उन्होंने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला, ये तो वही है। और ये कौन सा है? रीराइट वाला। दिस विल यूज मैक्सिमम पी और क्यू इज व्हाट, याद है? टाइप नंबर 7, रीराइट इफ इट्स नोट गतिशील ड्राइव्स द कार, वही है। P implies Q is what? Negation of P और Q। और सेकंड का मैंने एग्जांपल दिया था, if and only if A plus B the whole square equal to A square plus B square, if and only if AB is equal to 0, उसका आंसर भी लिखा था हमने। यस, कंडीशनल लॉ, ठीक है ना? पेयर ऑफ स्टेटमेंट हैविंग सेम मीनिंग, वो है ये तो पहला वाला, है ना? पेयर ऑफ स्टेटमेंट हैविंग सेम मीनिंग, they are given 4 statements, yes, which is identified having same meaning, and we have a converse, inverse, contra positive भी लिखा था हमने, सब एक साथ आ रहा है अभी। कंडीशनल लॉ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंडिविजुअल लॉ, लास्ट टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टू आर, क्या बोला मैंने? लास्ट टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी मीन्स टोटोलॉजी है, एनसी मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन, पी और निगेशन ऑफ पी इज टी। वैल्यू और उसका नेगेटिव आया तो वो टी होगा। ये और ये दोनों साथ में चलेंगे। क्यों? पहले ये आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, वैल्यू और उसका नेगेटिव, और रहा तो टी आएगा, एंड रहा तो सी आएगा। जब आंसर में टी और सी आएगा तो इस फॉर्म में आएगा वो। एग्री और नॉट? लेट मी क्लियर यू हियर ओनली, देन यू आस्क मी क्वेश्चन, ये सर कहाँ से आया? पहली बात क्लियर हो जाए। क्या लिखा है इधर? वैल्यू, तो मेरे पास P implies Q है, और उसका नेगेटिव है। समझा? वैल्यू और उसका नेगेटिव। P हो जरूरी नहीं है, P की प्लेस पे कुछ और भी आ सकता है भाई, ऐसा भी चलेगा। P and Q और उसका नेगेटिव P and Q is T value or its negative value. It can be P or it can be any other value, but that value having same negation sign, then it will be T. Same for and, value and, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर C हो जाएगा। Understood? One more point, क्या लिखा इधर? P और C is P, P की प्लेस पे कुछ भी आ जाए इधर, आई जस्टिफाई। अगर निगेशन ऑफ P और C आया ना तो उसका आंसर भी P ही होगा, आई कैन जस्टिफाई। पहला वाला और बाय ट्रुथ टेबल। P क्या होता है भैया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P? TF, एग्री। C मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन, ऑल आर F, और P और में क्या होना चाहिए? और दोनों टी, तो टी, दोनों टी है, बोथ टी, टी एफ इज एफ, एफ एफ इज एफ, पी और सी नो।
P is TF, C is FF, P और C में दो F तो F, रेस्ट ऑल आर T। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, आया ना। फिर मैंने कहा P की प्लेस पे निगेशन ऑफ P आएगा। व्हाट इज निगेशन ऑफ P? दैट इज FT, C is what? FF. Now find सेम, दो F क्या होते हैं? FF is F रेस्ट ऑल T, आंसर सेम होगा। यस, इस पे खास ध्यान देना, ये दोनों साथ में ही आएंगे, दिस टू ऑलवेज टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी, राइट फर्स्ट। Written online. Mention a note in 8 and 9 about T donate tautology and C donate contradiction. लिख लो। तो TC कहाँ से है मालूम नहीं पड़ेगा आपको। What is T and what is C? Tautology means all are T, and contradiction means all are F. Written? चलो exercise 1.9. Without using truth table, show that, or using algebra option, show that. अगेन क्वेश्चन का ऑर्डर में भी चेंज किया है मैंने, मगर सारे क्वेश्चन कवर किए। यस, राइट द क्वेश्चन। तीन स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये तीन ही अप्लाई करना है। फर्स्ट इज सर्च फॉर नेगेटिव वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहीं मिल जाए मुझे, ये या ये। सबसे पहले ये सर्च करने का क्वेश्चन है कि वैल्यू और उसका नेगेटिव कहीं से मिल जाए। मिल रहा है क्या? वैल्यू और नेगेटिव नहीं मिल रहा। अगर फर्स्ट की फेल हो गई, सेकेंड की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट? ये वाला P और Q और P और साइन सेम होना चाहिए। सॉरी, वी कैन गिव ब्रैकेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट फेल, ट्राई टू अप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी फेल हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ हियर द साइन इज सेम, हाँ या ना? so I can shift the bracket, yes or no? First negative, complement is not applicable, as I can see here, there is no complement in the question, complement not possible. Then my second key will come, I will try to apply what? Associative law, sorry, commutative law, yeah,
इट्स एप्लीकेबल। तो पहले वही लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया मैंने, एसोसिएटिव लॉ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू जस्टिफाई, यहाँ टाइप हुआ है, बट ये लिखना कंपलसरी है। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? वी कैन शिफ्ट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो था ना वो यहाँ वाला यहाँ शिफ्ट हो रहा है, अंडरलाइन किया है। उससे क्या होगा, उससे मेरा कॉम्प्लीमेंट लॉ आ जाएगा। एग्री और नॉट? एनी डाउट्स इन फर्स्ट स्टेप? First, try to apply complement law in the given question. If that is not applicable, try to apply associative law. If that is also not applicable, then apply distributive law. यहाँ distributive क्यों नहीं आया? Because दोनों साइन सेम है, और जब साइन सेम हो तो ओपन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे एग्जाम्पल है मैंने, 2 ब्रैकेट 3 + 5, तो क्या आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको? नहीं सर, प्लस है। हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। इनके साइन क्या है, सेम, प्लस प्लस। अगर ऐसा था 2 × 3 × 3 + 5, 3 + 5, अब साइन क्या आ गई भैया, अब ओपन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों लॉ में बहुत बारीक फर्क है, या तो दोनों साइन सेम होंगे, दैट मींस एसोसिएटिव। अगर ये इसकी जगह पे एंड होता तो ये एप्लीकेबल नहीं होता, दिस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द साइन इज अपोजिट। द साइन इज अपोजिट, वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट व्हेन ब्रैकेट इज गिवन। एग्री और नॉट? in that case we'll apply distributive law. First, complement law. If complement law is not applicable, associative law. How to check complement? Value and negation should be there. नहीं दिखा मुझे। सेकेंड की अप्लाई किया, दैट इज एसोसिएटिव, सेम होना चाहिए। हाँ सेम है सर, वी कैन शिफ्ट द ब्रैकेट। उससे क्या होगा, अपना उद्देश्य इसके अंदर एक ही होता है, कैसे भी करके कॉम्प्लीमेंट आ जाए। कि कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ही तो वो रिड्यूस होगा। अब आ गया कॉम्प्लीमेंट, वैल्यू और निगेशन। यस, आप ये लिखना, ये एग्जाम में इतना कंपलसरी नहीं है। जस्ट टू जस्टिफाई स्टेप, कौन सा लॉ अप्लाई किया है और उसमें क्या होता है, ये वो लॉ है, उसमें क्या होता है वो डिस्क्राइब किया है कलर में। ये लिखना कंपलसरी है, ये नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, मगर ये मत लिखना, एट प्रेजेंट लिख लेना। अंडरस्टूड? तो घड़ी घड़ी लॉ रिवाइज होगा तो थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इसमें क्या अप्लाई होगा, योर आई एम अंडरलाइन, जिसको अप्लाई करता है ना उसे अंडरलाइन कर देगा। इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। और में क्या होता है, और में कर क्या आता है, टी आता है, टी। आंसर इज टी। कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी हमेशा एक साथ आएंगे। एज आई सेड बिफोर, 8 9 8 9 8 9 स्टेप 8, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 घड़ी घड़ी साथ में ही आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमेशा टी और सी में आने वाला है। एंड टी सी यूज इन व्हाट, आइडेंटिटी लॉ। ये समझा स्टेप? इससे ये कैसे आया, ये सेम कॉपी किया है, यहाँ तक सेम कॉपी किया है, ये सेम सेम। इसका आंसर इसका आंसर वैल्यू और उसका निगेशन रहेगा तो टी, एंड रहेगा तो सी आता है, और में टी आता है, दैट इज टोटोलॉजी। अब इस पे क्या अप्लाई होगा बच्चों, इस पे अप्लाई आएगा आइडेंटिटी। पी और टी भी टी होता है, और कुछ भी है पी की जगह पे उसका आंसर भी टी होता है। जब तक टीसी आंसर में रहेगा, जब तक आंसर में टीसी रहेगा, जब तक आंसर में टीसी आता रहेगा, वी अप्लाई आइडेंटिटी लॉ अगेन अगेन एंड अगेन। अंडरस्टूड? यस। इस पे अप्लाई क्या किया, आइडेंटिटी। पी और टी इज पी, पी की वजह से कुछ भी हो जाए, एनी वैल्यू और टी इज टी, आंसर इज टी। फिर से टी आया, फिर से आइडेंटिटी, अभी एंड में आया है, एंड में क्या होता है, पी एंड टी इज पी, दैट इज पी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड? You also are the same way.
Any doubt, anyone? Question number 1. Then first one. Finish everyone. First complement you have to try to apply. If that is not applicable, you have to apply associative. Then last one is distributive. इसमें अप्लाई हो गया associative. जैसे अप्लाई किया क्या कॉम्प्लीमेंट आ गया. After complement always identity. And whenever the answer have T and C, we keep applying again and again. At present, write this also in your notebook. It will help you while you study. All the underline क्या हो रहा है? Leave one line and write in your notebook. In this question, we have negative. Implies का negative याद है? P implies negative. P implies Q का negation. First value same and negation of Q था. यहाँ P की प्लेस पे ये आया है. तो इसका negation क्या आएगा बच्चों? First value same, ये same, and इसका negation. Then already negative is there. We have a laws of negations. It is a negation of implication. Agree? First one copied, everyone. First one copied. Second question implies LHS. Implies का negation. As I said, what I said right now, implies में क्या होता है? First value same. तो यहाँ first वाली कौन है? ये पूरा value first है. ये भी P माना जाएगा. First value same and second का negation. So whatever that negation apply. Understood? लिखा हुआ है. ये P इधर है, this P replaced by this value. तो आंसर में P से मतलब P कौन है भाई? P से बाद में and, तो and सेकेंड वाला जो भी है उसका negation and second value. यहाँ क्यों लिखा हुआ है? In the place of Q यहाँ negation of Q लिखा है. तो second value जो भी है उसका negation. Understood first step? Negation is there. It's simple for us. Already whole bracket negation. So we can apply laws of negation and solve. Yes? Next. Negative is positive. Negation of negation. अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एसोसिएटिव आएगा या डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा?
टाइप करो आंसर। इसके बाद वाला स्टेप एसोसिएटिव होगा या डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, बताओ। कॉम्प्लीमेंट तो नहीं आ रहा दिख रहा है मुझे, वो नेगेटिव है ही नहीं, तो या तो एसोसिएटिव अप्लाईगा या डिस्ट्रीब्यूटिव, विच वन? टाइप योर आंसर प्लीज। एक आंसर आया है, करेक्ट है, दो आंसर है करेक्ट। कृष्णा पार्थ आंसर इज करेक्ट, यस नेहा करेक्ट, जीनत करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। एसोसिएटिव, व्हाई एसोसिएटिव? बिकॉज साइन इज सेम, ये ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट, आया ना, बाय एसोसिएटिव लॉ। अब ये कौन सा हो गया? ये सबसे पहला वाला हो गया भाई, आइडेंटिपोटेंट सेम वैल्यू, दैट इज पी। P and P is P, so Q and Q is Q. Understood? That is RHS. Any doubt anyone? ये simple था। Any doubt anyone? Any doubt? Question number 2. Again, question number 3. Negation of R implies negation of P and Q equivalent to minus sign negation of Q implies R negation of P. तो सबसे पहले बट ऑब्वियस ये सॉल्व होगा ना, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव पूरा भार नहीं है, बट यहाँ नेगेटिव भार है, दिख रहा है मुझे। LHS negation of conditional law. Okay, sorry. How to remove implication sign? How to remove if then? If then लिखा ये. We can't take negative outside, but we can remove implication sign. Conditional law. How to remove that? First value negative. Your first was what? उसका negative. Or second value as it is. Second value as it is. सबसे पहले एरो निकालेंगे। इफ यू अप्लाई दैट ऑल्सो, देन टू करना ही पड़ेगा। एरो निकालने के लिए कंडीशनल लॉ अप्लाई करना ही पड़ेगा, दैट्स व्हाई फर्स्ट कंडीशनल लॉ P implies Q. Type number 7, rewrite the given statement without using connective if then. How to write that? पहले वाले का नेगेटिव, तो पहला वाला जो भी है, जो भी XYZ उसका नेगेटिव साइन, और दूसरा वाला एज इट इज और कनेक्टिव। अब दोनों नेगेटिव है तो negation of R is R, और यहाँ क्या आएगा? negation क्या हो जाएगा? negation P and become all negation Q by negation of negation and conjunction. Again the sign is what? Or we can open the bracket and we can write in order, पहले P बाद में Q बाद में R। इससे ये वाला नहीं मिल रहा है,
and we cannot solve further also. You stop and give number 1. Associative law, साइन सेम, इसको अरेंज किया खाली, पहले P लिखा है, I have 2 plus 3 plus 1, ऐसा था 3 plus 1 plus 2, ओपन करके 1 plus 2 plus 3 लिखा है और कुछ नहीं किया. Understood? Now solve RHS. I hope so you can solve RHS. Same answer आएगा. इससे भी होता है बट वो हाई लेवल है. इसका रिवर्स करेंगे ना तो यही आता है. इससे भी आता है बट वो आपको समझ में नहीं आएगा. Understood LHS? Now RHS. फिर से निकालेंगे कंडीशनल लॉ. फर्स्ट वाले का नेगेटिव, सेकेंड वाला एज इट इज. यस, इसको रीराइट किया है, अगेन 2 बार अप्लाई किया है. पहले इसको अप्लाई किया है सी RHS, ये P है और ये Q है. दिस इज P, दिस इज Q. व्हाट इज दैट? से फर्स्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, जो भी है उसका नेगेटिव, ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड वन एज इट इज. इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, एज इट इज. अंदर वाले पे फिर से अप्लाई किया है. क्या अप्लाई किया है? से फर्स्ट वन बिकम नेगेटिव और अंडरस्टूड 2 टाइम कंडीशनल लॉ. ये ब्रैकेट ओपन होगा अभी, इनसाइड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव and become or become and. Again open the bracket, positive negative and become or and rearrange. Same answer. From 1 and 2, LHS equal to RHS. वन मोर टाइम RHS. सबसे पहले ये वाला सॉल्व है. P implies Q. आंसर निगेशन ऑफ P, इसका निगेशन. और सेकेंड वैल्यू एज इट इज. इन दोनों को भूल जाओ. अंदर ये ब्रैकेट में P implies Q, सेम P की प्लेस पे Q है, Q की प्लेस पे R है. समझा? अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और बिकम एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. अब ये वाला सॉल्व हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड बिकम और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब उसको रीअरेंज कर दिया, आंसर आ गया. अंडरस्टूड?
Finish everyone. Finish everyone. Understood? Yes or no? मैंने कहा था ना ये वाला बहुत यूज होगा, फिर से यूज हो रहा है। देखो इनविजिबल लॉ घड़ी घड़ी आएगा। राइट नंबर 4। Try to prove yourself. Number 4 implies कंडीशनल लॉ पहले आएगा। अगर इस पे मैं अप्लाई करता हूं कंडीशनल लॉ, एग्जांपल बोल रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा? नेगेशन पी और आर। इसका आंसर नेगेशन, उसका रिवर्स ही आने वाला है ना। हाँ चलो आ जाएगा। पहले इस पे कंडीशनल लॉ, दैट इज व्हाट फर्स्ट वन नेगेटिव and or sorry second one as it is. Now open the bracket, this become what? Negative q or become an sign same opposite। इसके बाद कौन सा लॉ? एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव? गिव द आंसर प्लीज। आफ्टर दिस एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एंड व्हाई? Associative or distributive, which one? Yes, very good. Distributive because sign are different. ओपन करो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है ना, when you apply reverse law, यहाँ से यहाँ negation p और q मतलब क्या होता है? p implies q। आंसर आ गया। राइट टू लेफ्ट आया, नॉर्मल लेफ्ट हैंड उधर, राइट टू लेफ्ट। इस साइन से मल्टीप्लाई करना है आपको, निगेशन q और r एंड बिटवीन में निगेशन q और r, निगेशन q और r मींस p implies q एंड एज इट इज निगेशन q और r मींस q implies r। आंसर फिनिश। Number 5, p double implies q
P and Q or negation P and negation Q. How to remove double implies, double implication? इसमें एक और स्टेप ऐड होता है ना, दिस वन P डबल implies Q का आंसर क्या था, negation P और Q and negation Q और P, that is remove double implication. तो पहला स्टेप वही आएगा. हाँ है ना, कंडीशनल लॉ डबल इम्प्लिकेशन का. Then now, but obvious, signs are different. Will apply distributive law. ध्यान देना जरा, ये वाला P इससे मल्टीप्लाई होगा, निगेशन P एंड बॉक्स ब्रैकेट दिया होगा. यस, नेक्स्ट कनेक्टिव कौन है, और लिखा, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा. अंडरस्टूड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. Negation just like this, Baba, is x plus 2 into x plus 3. How to open? X multiply x plus 3 plus 2 multiply x plus 3. वैसा ही है भाई. तो पहला वाला वैल्यू कनेक्टिव क्या रहेगा, एंड पूरा. इन बिटवीन क्या रहेगा, ये वाला लिखा है, फिर ये पूरा फिर से ओपन किया है. ये पुराना वाला है अपना, हाउ टू ओपन द ब्रैकेट दैट वी नो. इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहला वैल्यू क्या आएगा, निगेशन P एंड निगेशन ऑफ P. कनेक्टिव और निगेशन P एंड निगेशन P. ये फर्स्ट ब्रैकेट और ओपन द ब्रैकेट. जहां पे भी सेम सेम आ रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ. एग्री और नॉट? दीज आर कॉम्प्लीमेंट लॉ. इसका आंसर क्या आएगा, सी. इसका आंसर भी सी आएगा. कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आता है भाई, हमेशा आफ्टर कॉम्प्लीमेंट आईएनटी आता है. ये सुनो, अब खाली अरेंज करना है इसको. कम्यूटेटिव लॉ, पी क्यू एंड पी एंड क्यू सेम होता है, सेम आगे पीछे लिखा है, आंसर आ गया आर एच एस. अंडरस्टूड? Question number 5. Any doubts, anyone? One more time, if you are confused. पहले implies, डबल implies को रिमूव किया है. साइन सेम नहीं है, अपोजिट सब जगह. ये मल्टीप्लाई इससे, पहला ब्रैकेट. नेक्स्ट कनेक्टिव और ये मल्टीप्लाई इससे लिखा गया. अब ये बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है. पहले ये लिखा गया, कनेक्टिव इज और अगेन निगेशन P, ये वाला निगेशन P एंड कनेक्टिव और सेकेंड ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, कनेक्टिव इज और. अब ये वैल्यू एंड नेगेटिव, वैल्यू एंड नेगेटिव सेम वैल्यू, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट का आइडेंटिटी P और C इज P. अब P की प्लस ये पूरा आया है, P और C
इज पी, तो पी कौन है, ये ना, ये पूरा का पूरा सेम सेम. नाउ जस्ट इंटरचेंज, दैट इज कम्युनिटी लॉ, आर के पीछे लिखा गया इसको, और एंड सेम, दैट इज आवर आर एच एस. अंडरस्टूड नाउ? Any doubts anyone in question number 5? एक बार में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. मुझे नहीं आया था, आपको कहाँ से आएगा? Yes, you can solve RHS also instead of LHS. No problem, no issue. Answer will same. उसमें आपको फिर ये लेके आना पड़ेगा. There is no hard and fast rule कि लेफ्ट से ही राइट को लेके आओ. As per convenient, you can solve RHS to LHS or LHS. कुछ भी चलेगा, no issue, no problem. Done with one? Number 6. P or Q, bracket close and bracket negation P or negation Q. But obvious, first key, our first key is complement, not applicable. Our second key is associative, not applicable. The third will applicable, that is what? Distributive law. Agree? That is the box लगेगा. That is P and पूरा value, Q and पूरा value. Distributive law. Open the bracket. Connective is all. Next, open the bracket. Connective is all. Same value आया, same value आ रहा है. Underline क्या है? क्या आएगा? Complement. फिर क्या आएगा? आइडेंटिटी लॉ, दैट इज सेम ओनली. आगे पीछे लिखा है, आ गया आंसर. जो आंसर आया उसमें ये क्या है? और में है, अपने को एंड में आ रहा है, तो क्या करेंगे? ड्यू एंड बिकम और, एंड बिकम और. आंसर आ गया. Yes? Any doubts anyone? One more time. First bracket are open. P, पूरा bracket. In between sign or. Q, पूरा bracket. Next, again open. P and negation of P. Connective or. P and negation Q. Connective same or written same. Again open the bracket. P and negation of Q. Connective or. P and negation Q and negation of Q. Opposite sign. Opposite sign. Complement. Complement. Then C में क्या होता है? Identity, that is same value, same value. Only in the question what we have, आगे पीछे लिखा है commutative law, negation की पहले लिखा है, Q बाद में लिखा है. But in the answer we have or, and we are getting and. How to make and or? That is the dual. Understood? Number 6.
Any doubts till here? Those who are finished, they can leave. Those who are finished, they can leave. And do practice all these questions, 6 questions again at home, one more time, without looking the solution. That will help you a lot. Today only, not tomorrow also. Practice all these 6 questions again, one more time. Any doubts, anyone? Okay, you can leave now, all of you.